Good evening, everyone. Audible to all of you? Okay, so in today's session, first we will talk about one article that was there in news regarding sedition. So there was one case because of which this sedition came in news. So we'll talk about the history of sedition, how sedition came in our IPC, in our, you can say, judicial system, and what exactly is the current stand of Indian judiciary on the issue of sedition. And we'll see few important cases regarding sedition. And then we will have news in short. Second part is news in short. So these two things that we will do today. So first, let's start why it was in news. So it was in news because of one editorial. Yesterday's newspaper mein there was one editorial on countering a political act that has a legal jar. Now let's see what exactly is sedition or what is the history of sedition. क्या इसकी history है? Okay. Good evening everyone. Okay. So sedition is mentioned in Article 124, Section 124A of our IPC. That you can see the capital word. So generally these capital words like A, B, C, D, these are added to any section or any article of the Constitution if it is done by the amendment, if it is added by the amendment. So this section 124A was also added to our IPC by some amendment. So this was added or enacted in our IPC. Now IPC was enacted in 1860. There was first law commission. That was established to make Indian Penal Code. Anyone or tell me in the comment section under whom this first law commission was established to make our IPC. And then this 1860 mein there was enacting of IPC, but here this IPC was not having sedition. इस IPC में sedition का part नहीं था. It was added to sedition by amendment in the year 1870. So firstly, when our IPC was enacted, it was Macaulay. Very good, correct. कुछ लोगों ने लिख दिया होगा अभी तक, है ना? So there is a delay, 4-5 सेकंड का 10 सेकंड का शायद delay जो चलता है. So this 1860 में IPC was made, IPC बनाया गया था, and in this IPC, very good, Lord Macaulay was there. Now when Lord Macaulay made this IPC, तो Lord Macaulay ने तो वैसे IPC में sedition का section रखा था. He kept this as section 113. But when this IPC was implemented, at that time Britishers did not thought, Britishers को लगा कि there is no need of keeping IPC में sedition. उनको लगा कि यहाँ पे sedition की जरूरत नहीं है. But later they realized there is a need of sedition in next upcoming 10 years. तो ऐसी क्या चीज हुई in next 10 years? In next 10 years, there were few movements which were started mainly by Muslims to have, you can say, just a minute. So, in next 10 years, there were few movement. Majorly, they were started by Muslim people, Muslim preachers on the Indian subcontinent would wage a war against the government. So in next 10 years, there was some issue that Britishers felt Muslims under this movement of Wahhabi movement, which is called or Waliullah movement. Wahhabi movement या फिर Waliullah movement कहते हैं इसको. This Wahhabi movement was mainly for the purpose of independence. ऐसा चाहते थे ये Wahhabi लोग that India should be given independence from Britishers और यहाँ पे Islamic country बनाई जाए. So this Wahhabi movement में ऐसा सोचा गया कि they will start a war. Muslim will start a war against Britishers in India. To suppress this Wahhabi movement, इस Wahhabi movement या Waliullah movement को suppress करने के लिए there was addition of Article 124A in our IPC in the year 1870. 1870 में 124A was added. So initially you can see 1860 में this section was there 113 की बात की थी Macaulay ने, but Macaulay के recommendation लिए नहीं गए. This sedition was not added in 1860, but after 10 years
Britishers realized that they need sedition in India. So in 1870, they have to add one article called 124A, by which they added sedition in our constitution. And the first case और द फर्स्ट चार्ज जिनके ऊपर सेडिशन का लगाया गया था, द पर्सन वाज जोगेश चंद्र बोस. सो द फर्स्ट केस ऑफ सेडिशन. नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. One case is regarding first person who was charged under sedition, and second is the person who was convicted under sedition. दो अलग चीजें होती है. The person who was charged under sedition was Jogesh Chandra Bose. This case was in 1891. It was Queen Empress versus Jogesh Chandra Bose. And this is the person who was charged, but he was not convicted. ये convict नहीं हुए थे. The person who got convicted for this was Tilak. First person, Bal Gangadhar Tilak, was the first person to be convicted on the charge of sedition. ये पहले person थे जो convict हुए थे. Okay, so just remember this case and remember the year and remember this section number. Then what exactly is sedition? What is the law of sedition? क्या होता है this law of sedition? Section 124A of IPC says that under sedition, whoever by word, either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise, this is very vague, otherwise brings or attempt to bring hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection, this is second important word which is controversial, towards the government established by law in India shall be punished with the sedition. So इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड मिलके ढूंढ के आए थे. अदरवाइज दैट मीन्स गवर्नमेंट को जो लगता है, जो पर्सन लगता है उसके ऊपर लगाया जा सकता है, अदरवाइज भी. एंड सेकेंडली, इफ द पर्सन इज or whatever the person have said is resulting into disaffection towards the government. But what is the meaning of disaffection? तो इसमें थोड़ा सा और हमें डिटेल में जाना होगा. So there are different explanations for this. Like explanation 1 says that the expression disaffection include disloyalty and all the feelings of enmity towards the government. Then explanation 2 says that comments expressing disapprobation of the measures of the government with the view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense. तो इसमें बोल दिया गया है कि यहाँ पे you can say explain किया गया है what exactly is disaffection. Disaffection, अगर आप disloyalty to the government show करते हो या फिर feeling of enmity against the government show करते हो, then you will be charged under disaffection. But if you are showing your disapprobation, that means your dissatisfaction kind of thing, या फिर आप agree नहीं कर रहे हो government के साथ, but whatever the way you are expressing yourself, जिस तरीके से आप खुद को express करते हो, that you are not agreeing with the government, that is not resulting into any kind of hatred or not resulting any kind of you can say offensive नहीं है या फिर hatred नहीं है, violence आप नहीं influence करते हो, then you will not be charged under sedition. You will not be charged. This does not constitute an offense under this section. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसअफेक्शन, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ इनिमिटी या फिर डिसलॉयल्टी दिखाई देती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेडिशन. थर्ड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर. कमेंट्स आर एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन of the administrative or other action of the government without exciting or attempting to excite a hatred, contempt or a disaffection do not constitute an offense. तो यहाँ पे the most important word is incitement of offense or exciting hatred or attempt to excite hatred against the government. ये काफी important words है. Now what are the important cases in this regard? तो इंडिपेंडेंस से लेके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस इसमें क्या आई है, उन केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. उससे पहले एक बार देखते हैं. सर व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्स द लिंक, एनीवन कोई भेज देगा या फिर यू जस्ट गो ऑन द क्लैट पॉसिबल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाओ. वहां पे आप जाओगे तो लेफ्ट में तुरंत पॉपअप आ जाता है, तो उसमें टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है. ओके, हाउ कैन साइन ब्रिंग इन हेट्रेड. तो दैट्स द थिंग ना प्रीति, इसमें काफी ज्यादा यू कैन से वेग डेफिनेशन है.
Can you tell me what have been covered? I have joined. Okay. Right, Tanima. Correct. Okay. So the first case regarding this issue of sedition, is A.K. Gopalan versus State of Madras. This is the case of 1950 A.K. Gopalan versus State of Madras. In this case, it was observed by, now you can see this sedition was criticized by our freedom fighters. Like sedition को criticize किया गया था by Gandhi ji, even criticized by Tilak, and many freedom fighters criticized this. But then why we kept this during independence? हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि we have to keep this in our constitution, so in our IPC. So please tell me in the comment section, आपको क्या लगता है? Even there was a big discussion that happened in our Constituent Assembly regarding this IPC का 124A, and our Pandit Jawaharlal Nehru also said कि this is very obnoxious and obnoxious provision of our IPC. ठीक है, and this is very much objectionable as well. तो उन्होंने दो वर्ड यूज किए थे 124A के लिए. He said it is highly obnoxious and objectionable, and we should remove this from our IPC, from our, you can say, 124A से इसको हटा देना चाहिए as soon as possible. We should remove this as soon as possible because it is highly objectionable and obnoxious. तो अगर इतने problems थे, तो what was the reason for keeping it there? Please tell me in the comment section. So in the A.K. Gopalan versus State of Madras, शायद आप लोगों ने लिख दिया होगा, तो मैं एक बार पहले बता देता हूँ. The reason for keeping it in our IPC was this कि at the time of independence there were many secessionist movements in India. बहुत से इंडिया के अलग अलग पार्ट थे जहां पे secession स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना है ना. I think this should be the spelling. वैसे जीके टीचर से आप स्पेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट है ना. सो दिस इज सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स, दोज वेयर देयर. दैट मींस सेपरेटिस्ट मूवमेंट कह सकते हो, वेयर विद इन कंट्री देयर वर फ्यू एरियाज हु वर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस. लाइक देयर वाज सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स इन नागालैंड, जहाँ पे नागा लोग वेर डिमांडिंग अ डिफरेंट कंट्री बाय द नेम ऑफ ग्रेटर नागालिम. देन दिस सिमिलर मूवमेंट्स वेर देयर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक पंजाब में देयर वाज खालिस्तान का मूवमेंट वाज गोइंग ऑन. Then Junagadh में movement was going on, then Jammu Kashmir में movement was going on, then Hyderabad में movement was going on. So in the time of independence, to make or to keep India united, India को united रखने के लिए sedition रखना in our IPC was very much required, and that's why it was kept by our, you can say, freedom fighters or our constitution makers in our IPC at that time. But बोला गया था by Pandit Jawaharlal Nehru itself कि जल्दी से जल्दी इसको हटा देना चाहिए, remove कर देना चाहिए. ठीक है. So it was A.K. Gopalan versus State of Madras case of 1950, where court observed man is a rational being, desires to do many things, but in a civil society his desires have to be controlled, regulated and reconciled with the exercise of similar desires by other individuals. तो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि liberty that we have in India to speak anything, to do anything, has therefore to be a limited to effectively possessed. तो लिबर्टी इज देयर, बट इफेक्टिवली आपको इसका यूज करना है. इट इज नॉट, यू कैन से कि देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन योर लिबर्टी. आपका जो मन करे वो आप कर नहीं सकते अगर आप सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हो. ठीक है. सो आफ्टर दिस अनदर इंपॉर्टेंट केस इन दिस रिगार्ड वाज केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस ऑफ 1962. हियर ऑल्सो आवर सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of sedition and noted it is being a reasonable restriction, because we are having, यहाँ पे क्या हो गया था, there was a fight between freedom of speech and expression. Article 19 subclause 2 talks about, Article 19 talks about freedom of free speech and expression, but अगर sedition है तो ये तो restriction हो गया उसके ऊपर. So this sedition was considered by Supreme Court of India as a reasonable restriction. ये एक reasonable restriction है जिससे आपके लोगों के जो freedom है उसको restrict करना पड़ेगा on free speech as provided by Article 19 subclause 2 of the Constitution. Basic fundamental rights के article numbers you should know. If you don't know, तो take this as a kind of homework or tell me in the comment section later. अभी नहीं, बाद में comment section में लिख देना है different article numbers of all the fundamental rights.
एटलीस्ट यू शुड नो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर्स, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। देन यू शुड नो ऑल द शेड्यूल्स ऑफ इंडिया, कौन से शेड्यूल में क्या दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर फ्यू बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो। तो टुडे इफ यू डोंट नो, इनको रट्टा मार लो, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर्स। In this, it was made clear that the citizens has the right to say or write whatever they like, whatever she likes about the government. जो भी उनको पसंद है वो लिख सकते हैं, or its measures by the way of criticism. Even they can criticize or comment as long as there is a restriction, but there is a restriction as long as she does not incite people to have a violence against the governing government. तो आपको तब तक की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एज लॉन्ग एज जो भी आपने कहा है दैट इज नॉट रिजल्टिंग इनटू वायलेंस, एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर। तो पब्लिक डिसऑर्डर या वायलेंस, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, ये सब नहीं होना चाहिए इन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर ऐसा है तो आपके ऊपर सेडिशन लगाया जा सकता है, देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फॉलोइंग द केदारनाथ सिंह केस, द बॉम्बे हाई कोर्ट in the case of cartoonist called Asim Trivedi, just remember the name, the most important case in this is Kedarnath Singh and second most important case is Balwant Singh। तो ये दो केसेस काफी इंपॉर्टेंट है सेडिशन की, उसके आपको पक्का नाम याद रखने हैं। देन Asim Trivedi केस, ये अभी हुई थी कुछ टाइम पहले। इन दिस केस बॉम्बे हाई कोर्ट इशूड गाइडलाइंस दैट पुलिस शुड मस्ट फॉलो प्रायर टू इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ सेडिशन। नाउ ये काफी ज्यादा न्यूज में इसलिए होता है बिकॉज मेनी टाइम्स ऐसे एलिज किया जाता है कि दैट इट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज इन पावर इन डिफरेंट स्टेट और इन सेंटर टू स्टॉप द पीपल फ्रॉम टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या फिर उनके जो भी अपोजेंट्स होते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको जेल में रखने के लिए, उनको परेशान करने के लिए सेडिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हमेशा न्यूज में होता है एंड सुप्रीम कोर्ट में भी या फिर हाई कोर्ट में भी जाएंगे आप तो मेनी टाइम्स द कन्विक्शन रेट इन सेडिशन इज वेरी लो। कन्विक्शन रेट सेडिशन का काफी लो होता है, वो भी हम देखेंगे। सो दिस वाज आसिम त्रिवेदी केस। इस आसिम त्रिवेदी केस में it was said by the Bombay High Court they have given guidelines which must be followed by the police, पुलिस को गाइडलाइन दे दी गई कि इन विच केसेस आपको पब्लिक को अरेस्ट करना है, सेडिशन के चार्ज पे आपको अरेस्ट करना है। दीज इंक्लूड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल फॉर्म ऑफ ओपिनियन ऑन वेदर द वर्ड्स ऑन एक्शंस कॉज डिसअफेक्शन। तो आपको एक अच्छे से एनालिसिस करना होगा कि जो वर्ड्स यूज किए, जो चीजें यूज की गई है, दे आर कॉजिंग डिसअफेक्शन, आर दे कॉजिंग एनिमिटी और आर दे कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिसलॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, एज दे मस्ट बी of the magnitude that they incite violence and tend to create a public disorder। अगर ऐसा नहीं है तो फालतू में उस पर्सन को अरेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड ऑब्टेनिंग अ लीगल ओपिनियन इन राइटिंग। तो इन्होंने कहा कि किसी को अरेस्ट करने से पहले यू शुड टेक अ लीगल ओपिनियन इन राइटिंग फ्रॉम अ लॉ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु मस्ट गिव रीजंस हाउ द प्री कंडीशन आर मेड। This needs to be followed by a second opinion as well from the state's public prosecutor। तो दो लोगों से आपको ओपिनियन लेने चाहिए, ये पुलिस को बताया गया। So if the guidelines are very good, सारी चीजें इतनी प्रोसीजर अच्छे से दे रखी है by the judiciary, where is the problem? The problem lies in the poor implementation of the law and guidelines। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है in the poor implementation and misuse of the law। If we see between 2016 and 2019, the number of cases of sedition under 124A increased by 160%। I will not comment, है ना, कि कौन का पावर में होता है, you just see the issues। There is increase by 160%, while the rate of the कन्विक्शन, तो लोगों का जो कन्विक्शन होता है, उनको जो गिल्टी प्रूफ किया जाता है, दैट इज 3.3% इन 2019 फ्रॉम 33.3% इन 2016। तो कितना बड़ा ड्रॉप आया है, पहले था 33.3% विच हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3.3%। वेरी लो कन्विक्शन रेट इज देयर। देन इफ वी टॉक अबाउट, सो दिस इज सिचुएशन ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से इंडिया का सिचुएशन देखते हो इन फ्यू ईयर्स। Now, if we talk about sedition का history, तो sedition was introduced in India by whom? It was introduced in India by Britishers. But if we see currently, it is
रिपील्ड इन ब्रिटेन इटसेल्फ। यूके में सिडिशन होता ही नहीं है अभी, इसको हटा दिया गया यूके में। सिडिशन एज एन ऑफेंस वाज रिमूव्ड इन यूके इन 2010 एंड इंडिया इज होल्डिंग इनटू अ रेलिक ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो उनकी रखी हुई चीज हम आज भी मेंटेन करके चल रहे हैं। इन 2018 द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया published a consultation paper that asked for a possible amendment in the law or repeal of the law। तो ये भी याद रखो कि लॉ कमीशन ने भी इसको हटाने की बात की है। लॉ कमीशन ने भी कहा है कि देयर इज नो नीड ऑफ सेडिशन। नाउ अदर फेमस केसेस या हिस्टोरिकल केसेस। सो द फर्स्ट केस इज बाल गंगाधर तिलक इन द ईयर 1908 was sent to jail for the term of 6 years। तो ये तो उनका दूसरी बार कन्विक्शन था, इससे पहले भी वो एक बार कन्विक्ट हो चुके थे इन द ईयर 1897 फॉर हिज एसेज ऑन शिवाजीज अटरनेस। तो इन्होंने केसरी में कुछ लिखा था, उसके लिए भी इनको हिज 2 न्यूज़पेपर्स वर देयर। टेल मी नेम्स ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स और यू कैन से वीकली ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के क्या नाम थे एंड विच लैंग्वेज में दे वर देयर। So Tilak in 1908 was sent into jail for 6 years to Burma, that is Myanmar में इनको भेजा गया था under this section for his 2 articles in the newspaper called Kesari। He had previously been imprisoned for the term of 18 months in another sedition case in 1897 for his essay on Shivaji। नाउ एक्चुअली हुआ ये था कि तिलक की जो एसे थे, तिलक ने जो एसे लिखे थे, आफ्टर दैट देयर वाज असैसिनेशन। 2 लोगों को मार दिया गया था बाय यू कैन से 2 फ्रीडम फाइटर्स हु वर कॉल्ड एज चाफेकर ब्रदर्स। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ 1897। In this time there was one epidemic that was there in India। Tell me the name of that epidemic plus 2 people जो चाफेकर ब्रदर ने जिनको मारा था उनके नाम बताने आपको मुझे। एक तो एपिडेमिक कौन सा चल रहा था जिसकी वजह से वी हैव एपिडेमिक एक्ट इवन टुडे आल्सो, कोविड की वजह से एपिडेमिक एक्ट भी न्यूज में आया है। एंड नेम्स ऑफ दोस 2 people who were killed by चाफेकर ब्रदर्स। Maratha and Kesari, very good, very good। Maratha and Kesari was there, right। Then 2 people those were killed, plague was the epidemic, very good। plague था, bubonic plague was there in 1897 and secondly the person was W.C. Rand who was plague commissioner of Bombay। बॉम्बे के प्लेग कमिश्नर थे रैंड जिसका नाम था। एंड सेकेंड पर्सन वाज आयरेस्ट नाम के दूसरे पर्सन थे। इन 2 लोगों को मार दिया गया था, असैसिनेशन हुआ था, ठीक है। सो यू कैन से कि एक तरीके से वायलेंस तो हुआ था आफ्टर द स्पीच, आफ्टर इनके जो शिवाजी के बारे में उन्होंने कहा था उसके बाद वायलेंस तो हुआ ही था। सेकेंड, महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड फॉर सेडिशन। ही वॉज ऑल्सो ट्राइड फॉर हिज 3 आर्टिकल्स इन हिज daily called Young India। इनका था Young India। He had referred section 124A as prince, है ना। इनको इन्होंने क्या कहा कि ये एक प्रिंस है among the political sections of Indian Penal Code designed to suppress the liberty of citizens। हमारे लोगों की लिबर्टी को सप्रेस करने के लिए इसे बनाया गया है। इसी के साथ मुझे बता दीजिए, महात्मा गांधी ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका। व्हाट वाज द नेम? साउथ अफ्रीका में थे तभी इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? यंग इंडिया। तो इनका इंडिया वाला था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वीकली इन साउथ अफ्रीका? देन इनसाइड द आर्टिकल, अभी ये करंटली न्यूज में क्यों आया है, व्हाई इट इज इन न्यूज करंटली? सो देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड आयशा सुल्ताना, a filmmaker from Lakshadweep, was recently booked for alleged offenses of sedition and statement prejudicial to the national integrity। तो इनको बोला गया कि इन्होंने कुछ लिखा है, कुछ बोला है which is prejudicial to the national integrity of India। Miss Sultana then moved to Kerala High Court। तो इनके ऊपर जब sedition लगाया गया, she moved to Kerala High Court for a pre-arrest bail। इसको क्या कहते हैं? What is this bail called? Pre-arrest bail को क्या कहते हैं, उसका नाम बताना मुझे। And even she was allowed to get an interim bail। इनको bail मिल भी गई थी on July 17th। Miss Sultana thus got a temporary relief from the
incarceration. The court will pass its final orders in the application shortly. तो अब final order bail मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए वो अब आएगा. Miss Sultana's case is only one among the numerous sedition cases recently registered in the country. We have seen there is rise in the number of registered cases and drop in the conviction. In Lakshadweep, people have had a sedition slapped against them for putting up placards or protests against the Prime Minister of India. बाकी लक्षद्वीप का इशू आपको आइडिया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, राइट? तो चाहिए तो हम इसके बाद उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज यस्टरडे वी हैड अ डिटेल्ड सेशन ऑन लक्षद्वीप बाय एक्सपर्ट पर्संस, तो वो आपको आइडिया होगा. देन मिस सुल्ताना केस आल्सो रिवील्स द regime's political strategy to threaten the dissidents. जो लोग गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं उनको थ्रेटन करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इससे शो होता है. Now what are the background and implication? Miss Sultana is alleged to have used the word bioweapon in television discussion about the recent development in Lakshadweep and its draft reforms. जो अभी reforms की बात हुई है उसके अंदर. तो अभी देखते हैं आपने क्या बोला है, थोड़ा लक्षद्वीप का बता ही देता हूँ. इट इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी बेल. वेरी गुड, एंटीसिपेटरी बेल होती है. एंड गांधी जी का न्यूज़पेपर वाज इंडियन ओपिनियन. वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट, करेक्ट. प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रिटी, इट मीन्स दैट नेशनल इंटीग्रिटी को हैम्पर कर सकता है, इस टाइप का स्टेटमेंट था. ठीक है. प्री अरेस्ट इज योर एंटीसिपेटरी बेल. इंटरिम बेल मतलब उनको जो इंटरिम बेल है और यू कैन से एंटीसिपेटरी बेल है वो तो मिल गई है. दैट बेल इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज इंटरिम बेल. लेकिन अब जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी टेकन जब ये कोर्ट में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, राइट. सो शी कॉल्ड, राइट, bubonic plague. Yes sir. ओके, सो दिस लक्षद्वीप में क्या हुआ है? लक्षद्वीप में देयर इज पता ही आपको प्रफुल्ल पटेल है ना, हैज बीन अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड आफ्टर दैट फ्यू चेंजेस ही हैव बॉट. सो ही मेनली टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस चेंजेस या फिर फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट दिस चेंजेस हैव बीन ब्रॉट. लाइक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात की है. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, so first I will point out what are the problems and after that you yourself should decide. वैसे हमारा लक्षद्वीप पे सेशन हो चुका है but then still you should also decide कि क्या आपको लगता है. So the you can say problems यहाँ पे बोला गया है कि डेवलपमेंट के नाम पे LDA लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी can take any land which they feel is useful for development. तो लैंड कोई भी ये ले सकते हैं. Secondly देर इज यू कैन से बैन कर दिया गया है या फिर वहां की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनकी पावर को रिड्यूस किया गया है. देन थर्डली वहां पे गुंडा एक्ट को लगा दिया गया है. फोर्थली वहां पे अल्कोहल को सारे आइलैंड्स पे अलाउ कर दिया गया है एंड बीफ को बैन कर दिया गया है. Okay, so these are few things which are there. Now land acquisition करना. लक्षद्वीप के बारे में you should know more than 90% population is a tribal population who are having their own culture, जिनका खुद का अपना कल्चर है and they are ethnic Muslim. उनका ethnicity जो है वो मुस्लिम है and इनका जो लिटरेसी रेट है दैट इज ऑल्सो हाई. इनका जो यू कैन से ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो भी काफी लो है. सो डेवलपमेंट ठीक ठाक है वहां पे, कह सकते हो अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में. बट लैंड इनका एक्वायर कर लेना बिकॉज दे आर ट्राइबल एंड दे आर इथनिक मुस्लिम, दे आर हैविंग देयर ओन कल्चर, उनका खुद का सिस्टम है. इवन पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट में पंचायत को ज्यादा पावर देनी चाहिए तो पंचायत की पावर रिड्यूस कर दी गई है. देन डेवलपमेंट के लिए कोई भी लैंड लिया जा सकता है. गुंडा एक्ट लगाया गया है वेयर द क्राइम रेट इज ऑलरेडी लो. अल्कोहल उनके यहाँ पे अलाउड नहीं था. देयर वाज ओनली वन आइलैंड जहां पे ये मिलता था एंड दैट आइलैंड वाज फेमस फॉर टूरिज्म. बाकी यहाँ पे बीफ का वैसे कंजम्पशन एज सच है नहीं एंड वहां पे काऊ मिलती भी नहीं है, तो लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बैन लगा दिया गया है. देयर मेन ईटरी प्रोडक्ट इज फिश, ज्यादातर फिश खाई जाती है. इनके इवन मिड डे मील स्कीम से फिश को हटा दिया गया है या फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन लाए गए थे. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. नाउ these are you can say few problems. Now
व्हाट आर द पॉजिटिव्स? पॉजिटिव ये है कि दिस एरिया इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना इज ट्राइंग टू कंट्रोल और इनसर्कल इंडिया अंडर देयर थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। दे आर हैविंग देयर थ्योरी कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। इसके अंडर ये इंडिया को इनसर्कल करना चाहते हैं। दे हैव ऑलरेडी टेकन मालदीव्स अंडर देयर डेट ट्रैप, जो उधारी देता है चाइना और बाकी कंट्रीज, गरीब लोग कंट्रीज को फंसा लेता है। श्रीलंका को फंसा चुका है, पाकिस्तान को फंसा चुका है, एंड बांग्लादेश ऑन द वर्ज है, म्यांमार इज ऑल्सो ऑन द वर्ज। तो इस तरीके से इंडिया को इंसर्कल करना चाहता है, एंड इंडियाज मेजर ट्रेड रूट पासेस नियर टू लक्षद्वीप। सो इफ वी आर हैविंग वेरी गुड एयर बेस और यू कैन से मिलिट्री बेस इन लक्षद्वीप विच वी ऑलरेडी हैव, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है तो इंडिया के लिए अच्छा होगा। सो फॉर द डेवलपमेंटल पर्पज अगर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो अच्छा है। सेकेंडली, रिसेंटली एक 3,000 करोड़ का यू कैन से हीरोइन जो ड्रग्स होते हैं वो वहां पे मिले थे। यहाँ की इकोनॉमी जो है वो 350 करोड़ के आसपास की है, और यहाँ पे 3,000 करोड़ के ड्रग्स मिले थे नियर टू लक्षद्वीप, नॉट ऑन लक्षद्वीप, नियर टू लक्षद्वीप। तो यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल करना भी जरूरत है। देन thirdly, this area is affected by climate change. तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट के अंडर we will work for climate change also. There was one island called पराली आइलैंड, ये यहाँ पे सबमर्ज हो चुका था, पराली वन, तो उसको बचाया जा सकता है। So these are few positive things जिसके वजह से it was important to control or have लक्षद्वीप। एंड लास्टली they are planning to develop it like Maldives। तो Maldives में जैसे काफी ज्यादा टूरिज्म है, वैसे ही लक्षद्वीप में भी सिमिलर टूरिज्म करने का इनका प्लान था। Now these are positives, negatives. Now because it is intervening in the culture, इनके कल्चर में थोड़ा इंटरवेंशन होता है, इसके वजह से इसके लिए थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज को। एंड बिकॉज वन ऑफ एंड दिस क्रिटिसिज्म में देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड मिस सुल्ताना। मिस सुल्ताना वाज देयर, एंड इन्होंने कहा था कि जब से यहाँ पे देयर वेर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस आल्सो ड्यूरिंग कोविड-19, देयर वेर रिस्ट्रिक्शंस लाइक RT-PCR करके ही जाना पड़ता था, एंड लक्षद्वीप वाज नॉट हैविंग एज सच केसेस। बट जब से यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर बने, आफ्टर दैट देयर इज राइज इन द केसेस, अराउंड 7,000 के आसपास यहाँ पे कोविड के केसेस आ चुके हैं, जो पहले इतने ज्यादा नहीं थे। सो इन्होंने वर्ड यूज कर लिया फॉर दिस पर्पस कि गवर्नमेंट इज यूजिंग कोविड एज अ बायो वेपन, बायोलॉजिकल वेपन यूज कर रहे हैं टू टेक दिस लैंड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन का लैंड लेने के लिए। सो नाउ दिस इज द टोटल सिचुएशन, ये इनकी पूरी सिचुएशन है। सुल्ताना इंडिकेटेड इन हर पिटिशन बिफोर द कोर्ट एंड टू द मीडिया दैट शी इज अपोलोजेटिक। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, पहले इन्होंने बोल दिया बायो वेपन वगैरह ये सब जो बोलना था, आफ्टर दैट शी सेड कि आई एम अपोलोजेटिक अबाउट द वर्ड आई यूज्ड, और इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है कि या इन्होंने अपोलोजाइज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सुल्ताना इज नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं है, एंड इट इज प्रोबेबल दैट शी मे नॉट वेरी आर्टिकुलेट और इवन बी एबल टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ऑन द अफेयर्स ऑफ द नेशन। इनका नेशन से भी कोई लेना देना है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई लेना देना है नहीं, ये तो बस अपने आइलैंड के लिए बात कर रही थी, लक्षद्वीप के लिए। It seemed like she was partly accusing herself or acknowledging the mistake in some way। तो इन्होंने बाद में थोड़ा सा खुद को ये कर दिया कि मेरे से गलती हो गई इस टाइप से। The self accusation was however unwarranted, ऐसी जरूरत नहीं थी। This is the opinion of the writer, मैं नहीं कह रहा हूं, opinion of the writer है जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। When the purpose of the sedition law is to curtail opposing ideas, her rescission had the effect ऑफ लिजिटिमाइजिंग द स्टेट्स रॉन्गफुल एक्शन। तो इस ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो अपोलॉजी दे दी है, इससे सरकार की जो गलती है उस पे वो सरकार को पावरफुल बना दे रहे हैं। नाउ व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम द हिस्ट्री? सुल्ताना केस एज अ केस स्टडी फॉर दोज हु आर कंसर्न अबाउट कंट्रीज लिबरल वैल्यूज। तो उनके लिए एक काइंड ऑफ केस स्टडी है कि कैसे लोग डरे हुए हैं, सरकार के अगेंस्ट कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते। A great trial of 1922, यहाँ पे इन्होंने रेफर किया है महात्मा गांधी के ट्रायल को। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यू कैन सी गुड थिंग, जो महात्मा गांधी ने अपने आर्ग्यूमेंट में कही थी उन चीजों को यहाँ पे लिखा गया है। He was charged with a sedition, described the provision as perhaps the prince among the political section of IPC designed to suppress the liberty of citizen. Gandhiji, who himself was a lawyer, made 2 points in his statement in 1922। तो इन्होंने दो चीजें अपने बारे में बताई, दो चीजें जो इन्होंने बोली थी। फर्स्ट ही सेड, वन, ही एडमिटेड द चार्ज ऑफ प्रीचिंग डिसअफेक्शन
टूवर्ड्स द एग्जिस्टिंग रेजिम। तो इन्होंने ओपनली कहा था गांधी जी ने कि यस आई हैव डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इवन ही सेड, इसी के बाद उन्होंने कहा टू ही जस्टिफाइड हिज डिसअफेक्शन, इन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा है बाय इट वाज हिज ड्यूटी, इन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है टू डू सो एज अ सिन टू हैव अफेक्शन फॉर द सिस्टम। तो इन्होंने कहा कि इनके हिसाब से क्या है कि ये सिस्टम इतना खराब इतना करप्ट है कि इफ आई शो अफेक्शन, ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहे थे वो, इफ आई शो अफेक्शन टूवर्ड्स दैट सिस्टम देन इट इज अ सिन, ये एक टाइप का पाप है अगर मैं उनके टूवर्ड्स अफेक्शन दिखाता हूं तो। दैट्स व्हाई इट इज माय ड्यूटी टू शो अफेक्शन टूवर्ड्स द सिस्टम। ही एक्सप्लेन्ड अफेक्शन कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और रेगुलेटेड बाय अ लॉ। आपकी पूरी मर्जी है, आपको अफेक्शन रखना है नहीं रखना है, आपकी पूरी मर्जी चलेगी। इन इफ वन हैज नो अफेक्शन फॉर अ पर्सन और अ सिस्टम वन शुड बी फ्री टू गिव हिज फुलेस्ट एक्सप्रेशन, इनको पूरा फ्रीडम होना चाहिए टू हिज डिसअफेक्शन एज लॉन्ग एज ही डज नॉट कंटेम्पलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी जुडिशियरी ने भी उठाई है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था आपको जो मर्जी वो आप बोल सकते हो, आपको अफेक्शन शो नहीं करना है, डिसअफेक्शन शो करना है, जैसे करना है वैसे कर सकते हो, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कंटेम्पलेट और प्रमोट और इंसाइट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। जब तक आपके किसी भी स्टेटमेंट से कोई वायलेंस नहीं आता तब तक आप जो भी बोलते हो वो ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो लीगल। Curiously, the assertion of Gandhiji's made in the court was indirectly laid down as the law by constitutional bench on the Supreme Court of India in Kedarnath Singh case in 1962, which said that the incitement of violence is the gist of the offense of sedition. ये इसका मेन अर्थ है कि आपके किसी भी स्टेटमेंट से there should not be any kind of incitement of violence. This opposition was followed by a top court consistently recent case of Vinod Dua, where the court said that the journalist cannot be booked for sedition for expressing a dissent. The law was clear even when Gandhiji was convicted and sentenced. Evidently, the charge and the conviction were political, not legal. Even today, the very registration of crime against political opponents under the draconian sedition law is essentially political act, though takes a legal form. तो ये एक legal form हो जाता है लेकिन ये politically use किया जाता है to suppress the opposition. Unfortunately, Miss Sultana's subsequent expression of regret does not pass this political test. तो इन्होंने क्या किया बाद में अपने आप को जो अपोलॉजी दे दी उसके वजह से ये पॉलिटिकल टेस्ट पास नहीं करता। She should have asserted that the word she used bioweapon was proper and correct. इनको प्रूफ करना चाहिए था। It is possible for her to justify it as an imagery capable of exposing the regime's unprincipled approach in the Lakshadweep. तो ये इसको प्रूफ कर सकती थी, उन्होंने इसको छोड़ दिया। That is the problem. It need to be told that the British Raj used the draconian provision only when the alleged that a speech or writing resulted into violence. तो इवन ब्रिटिशर्स ने इसका यूज कब किया था? जब वायलेंस हुआ था। जैसे कि तिलक was tried in 1897 because इनके स्पीच की वजह से there was killing of 2 British officers जिसके नाम आपने मुझे बता दिए। In 1908 he was again tried for writing seditious article connecting to them with certain social disorder, जिसकी वजह से थोड़ा disturbance और you can say riots kind of situation हो गया था सोसाइटी में। Post independence in Kedarnath Singh, who was a forward bloc communist leader, इन्होंने भी he talked about इनको क्यों चार्ज किया गया था केदारनाथ सिंह को? तो ये लेफ्टिस्ट लीडर थे जिन्होंने कहा था we have to go for a revolution and this revolution will the flames of which will fall on the capitalist zamindars and the Congress leaders of India will be reduced to ashes. तो इन्होंने क्या बोल दिया? रिवॉल्यूशन करने की बात की जिसमें जो कैपिटलिस्ट है, जमींदार से और कांग्रेस के लीडर है उनको जला के खत्म कर देना, उनको एशेस में कन्वर्ट कर देना है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वायलेंस हो सकता था। दैट्स व्हाई ही वाज चार्ज। So the court said the comments, however, strongly worded expressing disapprobation of the action of the government without exciting the feeling which generate the inclination to cause a public disorder, very possible, है ना, by the acts of violence would not be penal. तो ये कहा गया कोर्ट में। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन दिस इज बलवंत सिंह 1995। बलवंत सिंह ये एक खालिस्तान मूवमेंट के लीडर थे
जिन्होंने एक स्पीच दी थी, एंड आफ्टर ही स्पीच देयर वाज असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, बट इनकी स्पीच में देयर वाज नथिंग सिडिशियस, या फिर उन्होंने कोई वायलेंस की बात नहीं की थी। इन्होंने सिर्फ अपने अलग कंट्री की बात की थी और जैसे खालिस्तान जिंदाबाद इस टाइप के कुछ नारे लगाए थे, बट दे वर नॉट रिजल्टिंग इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड ही वाज नॉट कनेक्टेड विद एनी वे विद द इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, इसलिए इनको कोर्ट ने छोड़ दिया था। He was given a slogan for independent Sikh nation were found to be not seditious। हमने कहा था कि ये seditious नहीं है क्योंकि ये डिमांड कर रहे हैं, इनका जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहीं पे भी वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं। For what to be ingredient of incitement of violence, that was not there। None of these prominent cases relied on the mere use of the word to make out for an offense। A new official judicial activation after 2014, the cases of sedition are frequently and intentionally registered solely based on the words spoken, written or tweeted। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हो रहा है ट्वीट, एंड दिस कैन हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द पीपल्स मूवमेंट इन इंडिया, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज not good। The clear political object which is behind the invocation of the law creates an atmosphere of fear in the minds of people, and this is the way how the price which the country had to pay for the retention of the law of sedition among the other draconian laws। Therefore, Supreme Court of India and the High Courts should take a suo moto cognizance of this issue। suo moto मतलब खुद से इन्होंने इस इशू को ले लेना चाहिए और इस आईपीसी को, ऐसा इनका कहना है कि 124A को हटा देना चाहिए। दिस इज द स्टैंड ऑफ द, you can say, the person who have written the article, and this is difficult but not impossible। The suo moto proceeding, suo moto पर खुद से स्टार्ट की हुई proceeding would reflect the kind of judicial activism that is our time demands। The organized bar, especially the state level, जो हमारे हाई कोर्ट्स है, must perform a liberation role by constantly demanding for a judiciary that values of freedom and acts for it। So this was about sedition। Now let's move on to news in short। High Court plan to shut down a dairy farm in Lakshadweep। Stays, High Court ने इसको स्टे लगा दिया। तो अगेन रिलेटेड टू लक्षद्वीप है, पंचायती राज की पावर का ये एक पार्ट था, वहां की डेयरी फार्म बंद करने बोल दी थी, बट द केरला हाई कोर्ट स्टेड दिस। द गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया था ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप, डिसीजन टू क्लोज डाउन द dairy farms run by animal husbandry department and remove the meat from the menu of a midday meal scheme was stayed। सुप्रीम जो केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये सब रहना चाहिए, यहाँ पे मीट अगर है नहीं है वो देखा जाएगा, इनके मिड डे मील में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। द बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस मनी कुमार पास्ड द स्टे ऑर्डर इन द रिट पिटिशन विच वॉज फाइल्ड बाय अजमल अहमद ऑफ कावारती। तो इनका नाम याद रखना, अजमल अहमद ने ये केस की थी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 583 करोड़ डील साइंड फॉर 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स। तो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स मींस जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली शिप्स होती है, जो मरीन पोल्यूशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डर दिया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 वेसल्स विच विल कंट्रोल पोल्यूशन टू अ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो गोवा शिपयार्ड विल कंस्ट्रक्ट 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स एट द कॉस्ट ऑफ 583 करोड़ फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड्स, एंड द डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड बाय 2024 एंड May 2025 respectively, and these will be given to the Andaman and Nicobar region। अंडमान निकोबार रीजन में ये लगाया जाएगा ताकि जो मरीन पोल्यूशन है वो हो नहीं। वर्ल्ड्स फर्स्ट genetically modified rubber sapling is planted in Assam। The rubber board research farm on the outskirts of Guwahati, Assam, planted world's first genetically modified rubber plant tailored for the climatic condition in northeast। तो अभी जनरली इंडिया में सबसे ज्यादा रबर का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो होता है केरला में। अब हम GM रबर टेस्ट कर रहे हैं इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर रबर। दिस इज जीन MnSOD, इनका नाम याद रखना, विच इज मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस, ठीक है। तो मैंगनीज डाल दिया गया है इन द रबर which will sustain a severe cold condition during winter, a major factor affecting the growth of rubber plant in the northeast। तो ये बनाया गया है and this plant was made or developed by Kerala based rubber रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना, इंडिया का रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है? केरला में। विद दिस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इंडिया में एक GM क्रॉप है जो लीगली अलाउड है, व्हाट इज द नेम? जो कमर्शियली GM क्रॉप यूज होता है। लास्ट न्यूज, UNHRC
have a grave concern over the Xinjiang. Xinjiang is a province in China. चाइना का एक स्टेट है जहां पे मेनली उइगुर पॉपुलेशन रहता है, उइगुर लोग रहते हैं. दीज आर इथनिक मुस्लिम पीपल. ये मुस्लिम लोग हैं जो इस रीजन में रहते हैं एंड दे आर बीइंग परसिक्यूटेड बाय चाइना, ऐसा कहा जाता है. इनको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है. इवन द क्लेम्स आर देयर कि इनका जीनोसाइड किया जाता है, मतलब यहाँ की चाइनीज आर्मी इनको मारती है. ठीक है, किलिंग ऑफ उइगुर्स इज डन बिकॉज उइगुर्स आर हैविंग सम टेररिस्ट कनेक्शन, ऐसा बोला जाता है बाय चाइना. More than 40 countries led by Canada voiced a grave concern at United Nations Human Rights Council about China's action in Xinjiang, Hong Kong and Tibet. Someday we will talk about Hong Kong, someday we will talk about Tibet also, और उइगुर का भी कभी डिस्कस करेंगे when we will talk about China's internal issues. आएगा ही आएगा. They widely anticipated a joint statement had been made in the 47th session of council in Geneva. तो इसका हेड ऑफिस याद रख लो, कहाँ पे? UNHRC. इट इज इन जिनेवा. ठीक है. दिस वाज ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी अमेरिका के अलाइज है वो सारे इसके सपोर्ट में थे. इसके अलावा तो कुछ आपके कमेंट्स देखते हैं. इट इज बीटी कॉटन, राइट? बीटी कॉटन. तो टुडे वी हैव डन सेडिशन. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ऑन सेडिशन. लक्षद्वीप का भी कल का और आज का पता करके आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा. इन टुडेज न्यूज़पेपर देयर वाज वन आर्टिकल ऑन जम्मू एंड कश्मीर. सो टुमारो वी विल कवर जम्मू एंड कश्मीर इन डेप्थ. जम्मू एंड कश्मीर के पूरे 370 की हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक अपन कवर करेंगे क्या है जम्मू कश्मीर में. उसके अलावा इन टुडेज न्यूज़पेपर देयर वाज वन मोर आर्टिकल ऑन ईरान. तो आई होप अगर आपने उसको गो थ्रू भी किया रहेगा तो वो आपको आराम से समझ आ गया रहेगा कि क्या था आर्टिकल, क्या नहीं था. ठीक है, बिकॉज वी हैव डन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमने कर लिया है. एंड पीपीटी अपलोड कर दूंगा आज ही. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके फ्रेंड्स को बताइए यूट्यूब पे ज्वाइन करने के लिए, और इसको प्लीज लाइक शेयर कमेंट, है ना, लाइक बढ़ा दिया कीजिए थोड़े से. देन देयर इज टेलीग्राम पे आपको पीपीटी के पीडीएफ मिलेगी एंड रील्स विल स्टार्ट ऑन इंस्टाग्राम वेरी सून. ओके, यस सामिया, राइट, यू आर करेक्ट. खोमेनी एंड खामेनी, ये खोमेनी टाइटल नहीं है. खोमेनी वाज द सरनेम एंड खामेनी इज अनदर पर्सन का सरनेम. ठीक है, तो टाइटल नहीं था. यू आर करेक्ट. सर प्लीज डिस्कस एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, ठीक है. सर हाउ कैन द ड्राफ्ट बिल हेल्प इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट कंसर्न इन लक्षद्वीप? अभी नहीं करेगा, लेकिन डेवलपमेंट में फ्यूचर में हो सकता है ना कि वो क्लाइमेट पे भी फोकस करे. हो सकता है. दैट आई एम सेइंग कि पॉजिटिव पार्ट हम देख रहे हैं. ए गोपालन में एज कुछ हुआ कुछ नहीं था, बस उनने बोला था कि लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है आपके. दैट वाज नॉट, ए गोपालन वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेडिशन, बट देयर दे टॉक्ड अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन योर लिबर्टी. ठीक है. यस हितार्थ, फिर आपके इफ यू आर सीपी स्टूडेंट यू मस्ट बी हैविंग माय नंबर, तो मुझे फोन कर देना एक बार. ठीक है. थैंक यू स्पंदन. थैंक यू एवरीवन. चलो देन सी यू इन द टुमारो सेशन. थैंक यू. बाय बाय.